Hello dear students, welcome to my channel Parth Classes. आई एम मेघा और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और एक्सरसाइज 2.1 कराई थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 का ये हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में कर चुके और एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पहले आपको स्टार्ट बना देती हूँ कि क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2. So the exercise 2.2 we will learn about the zeros of a polynomial. The zeros of a polynomial are called roots or solutions, are the values of the variable that makes the polynomial equals to 0. Here I am giving you an example. P a polynomial x is equals to 2x minus 4 at x is equals to 2. So here we will check this polynomial. The value of the variable it shows the zeros of a polynomial or not. So basically, first we will write the polynomial that is equals to px is equals to 2x minus 4. Here we will check the value of x is equals to 2. So polynomial is equals to 2 multiply with 2 minus 4, that is equals to 4 minus 4 is equal to 0. That's why x is equals to 2 is the zeros of a polynomial. If you get the value of a polynomial is 0, that is called the zeros of a polynomial. When we put the value of the variable, then we get the value of the polynomial is 0. That means that shows the zeros of a polynomial. Okay. So here I am writing some notes for you. Linear polynomial has only one zero and a quadratic polynomial has two zeros and the cubic polynomial has three zeros. So now we are going to start the exercise 2.1. In a question number 1, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0, x is equals to minus 1 and x is equals to 2. Here we will check the value of the polynomial on these 3 points. Okay, so let's start the exercise question number 1. And the polynomial is 5x minus 4x square plus 3. So and the first part is x is equals to 0. So let's check the value of the polynomial. P0 is equals to 5 multiplied with 0 minus 4 is multiplied with the square of 0 plus 3. That is equals to 5 multiply 0 क्या हो जाएगा आपका? ये आपका होगा बेटा 0. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0 ऑफ 0 minus 0 plus 3 is equals to 3. And this, in a second part, we are going to check the value of our polynomial at what? At x is equals to minus 1. The same polynomial we are using in this part, 5x minus 4x square plus 3. We will put the value of x is equals to minus 1. Polynomial minus 1 is equals to 5 is multiplied with minus 1 minus 4 into minus 1 का square plus 3. So that is equals to minus 5 minus 4. When we square the negative number, that is a positive number. Square of any negative number is a positive number. When we multiply 4 with 1, that is also 4 plus 3. Minus 9 plus 3 is equals to minus 6 is the value of the polynomial at x is equals to minus 1. Clear? Now we are going to start the third part of this question. So let me erase this first part and here I will solve the third part. Okay. सेम पॉलिनोमियल पे हम चेक करेंगे अपना just a minute, let me clear the page. Okay, सेम पॉलिनोमियल हमारे लिए गिवन है px is equals to 5x minus 4x square plus 3. What we will do, we are going to check the value at x is equals to 2. Okay. Now we are going to calculate the value of this polynomial at p2.
जस्ट ए मिनट, p इज इक्वल टू 2 पे हमको चेक करनी है, तो 5 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 minus 4 into 4 plus 3, that is equals to 10 minus 4 4 जा 16 plus 3 is equals to minus 6 plus 3, that is equals to 3. Okay, clear? वैल्यूज फाइंड करने आ गए आप लोगों के लिए बेटा। यहाँ ये जो वैल्यू है आपकी -3 होगी, ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ +3 लिख दी थी, दैट इज इक्वल्स टू -3. लेट मी चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इज इक्वल्स टू -3. इज इट क्लियर? तो हाउ यू calculate the value of a polynomial if the values of a variable is given to you in a next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है as a question number 1. Here we will calculate the value of the polynomial at p is equals to 0, p is equals to 1 and p is equals to 2. Okay, let's start the first part of the question. थोड़ा सा राइटिंग में आप लोगों को लग रहा होगा just because of that ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं इस तरह से बना रही हूँ, अदरवाइज तो मैंने अपनी बोर्ड पर ही बनाई थी सारी वीडियोस, आप लोगों को पता है ना. थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू होगा, मे बी मुझे बार बार चेंज भी करना पड़ रहा है, ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है. आफ्टर प्रैक्टिस आई विल परफेक्ट इन दैट. तो p इज इक्वल टू वेरिएबल की जगह हमें क्या रखते हैं, 0 रख देते हैं, तो p 0 निकालेंगे बेटा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. एट p इज इक्वल टू 1 पे जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, p 1 की जगह पे 1, जहां जहां y है तो वहां 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये +1 और ये -1, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, दैट इज 1. p इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पे हमें निकालनी है पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 plus 1 is equals to 3. Now you will calculate the value of all the polynomial at 0, at 1 and 2. Okay. Next part of this question we will take the polynomial as pt. Here the variable is t, तो that's why हमने यहाँ जो polynomial लिखा है अपना pt लिखा है. Just because of that यहाँ हमारे पास जो variable है वो t है बेटा. 2 plus t plus 2t square minus t cube is equals to 1 by 1 चेक करते हैं वैल्यू, p 0 निकालनी है सबसे पहले हमें, दैट मीन्स हमें t की जगह पर 0 पुट करना है. 2 plus 0 plus 2 into 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2. क्योंकि ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा, दिस वन टर्म इज ऑल्सो 0 एंड ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो दैट्स वाई 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई. एट सेम हम p1 निकालते हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 और ये +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 4. सेम हम 2 पे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 पे क्या आएगा आपका, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 2 का क्यूब, दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 4 minus 8 is equals to 4 plus 8 minus 8 plus 8 minus 8 cancel, तो that is equals to 4. Clear? आपको निकालनी आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा आपका, यहाँ पॉलिनोमियल इज गिवन है px is equals to x cube at x is equals to 0 at x is equals to 1 at x is equals to 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, is equals to
1 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड इन अ सेकेंड p1 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ बेटा 0 था, 0 का क्यूब निकालना था, मैं 0 का क्यूब निकालेंगे तो दैट इज 0. ठीक है, p1 यानी कि 1 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड p2 इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 8. सिंपल सा था, यहाँ पे 0 रखा तो 0 की वैल्यू 0 जब रखा है इसमें तो 0 आ जाएगी. 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन next part of this exercise. Here the polynomial is given px is equals to x minus 1 into x plus 1. इसको ऐसे ना सॉल्व करने की जगह बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, x मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू 1. तो यहां मैंने x का मल्टीप्लाई x से करा, फिर x का मल्टीप्लाई 1 से करा, x का माइनस 1 का मल्टीप्लाई x एंड देन माइनस 1 इज अगेन मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस x प्लस 1. माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 1. हमको क्या फाइंड करना है, p0. So that means we will put the value of x is equals to 0. Square of 0 plus 1 is equals to 1. Same thing we will do with this polynomial and we will put the value of a variable is 1. Square of 1 plus 1 is equals to 1 plus 1 is equals to 2. Same, we will check the value of this polynomial at 2. p2 पॉलिनोमियल क्या था बेटा, p एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना हमारे पास पॉलिनोमियल, तो हमें p2 निकालना था. ठीक है, p2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. क्लियर, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 कैलकुलेट करना. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, अच्छा क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं है. ओके, वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन आवर पॉलिनोमियल एंड देन चेक द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0, दैट्स व्हाई इट्स द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. So basically here polynomial is given px is equals to 3x plus 1. Here we will put the value of x is equals to minus 1 by 3 and then check the value of a polynomial. If it is 0, that means it's verified that the zeros of a polynomial. Okay, let me check it. P minus 1 by 3 is equals to 3 into minus 1 by 3 plus 1. 3 से 3 cancel and the minus 1 plus 1 is equals to 0. Hence, x is equals to minus 1 by 3. X is equals to minus 1 by 3 is a zero of polynomial x. क्लियर, हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास इंडिकेट करके दे रखी थी वैल्यू x की, उसको हमने पुट करा एंड देन चेक करा दैट इज 0. तो दैट मींस इट्स द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, हमको वेरीफाई करना था एंड इट्स वेरीफाइड कि दैट इज द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. इन द नेक्स्ट पार्ट polynomial is given to you, px is equals to 5x minus pi. So let's check the value. X is equals to 4 by 5. Okay, p 4 by 5 is equals to 5 into 4 by 5 minus 5. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या जाएगा आपके पास 4 minus 5. तो hence x is equals to 4 by 5 is not a zeros of a polynomial, क्योंकि यहाँ वैल्यू हमारी 0 नहीं आई है ना आपके पॉलिनोमियल की, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. हेंस x is equals to 4 by 5 is not a zero of px. Is it clear कि how we will check the value of the polynomial? Okay, let's move on next slide.
In next slide, the question is given x is equals to px is equals to x square minus 1. तो here हमारे पास बेटा यहाँ x की वैल्यू 2 दे रखी है आपको, -1 एंड +1, तो दोनों से हमें चेक करना पड़ेगा. ओके, लेट्स चेक इट. द px is equals to 1. तो p1 is equals to 1 का स्क्वायर -1 is equals to 1 -1 is equals to 0. ये तो 0 आ गया. एंड p -1 पे चेक कर लेते हैं, देन हम लास्ट में लिख देंगे इसमें -1 का स्क्वायर -1 is equals to 1 -1, that is also 0. Hence x is equals to -1 and a +1 are zeros. 0 of okay. नेक्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, सेम बेटा जहां ये ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था. इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे अपने पॉलिनोमियल को, देन वैल्यूज पुट कर लेंगे. ओके, लेट्स मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई विद x माइनस x मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x -2 into 1. मल्टीप्लाई आपको आता होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्लास 8 में पढ़ के ही आ रहे हैं आप ऑलरेडी. यू ऑलरेडी नो हाउ टू मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2. अब 1 बाई 1 करके इनकी वैल्यू चेक कर दीजिए. x इज इक्वल टू -1 पे जब हम चेक करेंगे तो what we will get, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 -1 प्लस 2. ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे. एट p इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2, ये यहां से यहाँ कैंसिल हो गए, तो ये क्या कैलकुलेट होकर आया p. तो हैंस x is equals to -1, 2 are not zeros of a polynomial. क्लियर, कैसे निकाला हमने वो आपने चेक कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, पॉलिनोमियल px is equals to x स्क्वायर. तो सेम हम यहाँ चेक करेंगे x is equals to 0 पे. तो पॉलिनोमियल 0 is equals to square of 0, that is equals to 0. Hence x is equals to 0 is a 0 of the 0 of, ठीक है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका, पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा, px इज इक्वल्स टू lx प्लस m. x इज इक्वल्स टू -m अपॉन l पे चेक करना है इसको, p -m अपॉन l इज इक्वल्स टू, x की जगह पे रख दीजिए बेटा -m अपॉन l प्लस m. l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है आपका -m प्लस m, सॉरी यहाँ पे m हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. हेंस x इज इक्वल टू -m अपॉन l is a 0 of px. क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है क्वेश्चन, और इसके 2 पार्ट्स अभी और हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं इस वाले क्वेश्चन में, 8 पार्ट्स हैं टोटल. ओके, तो यहाँ पॉलिनोमियल क्या है बेटा आपका, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1, सेम x इज इक्वल टू -1/√3 रख लीजिए. p -1/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1.
दैट इज इक्वल टू 3 into 1 by 3 minus 1, 3 से 3 cancel, तो that is equals to 1 minus 1 is equals to 0. तो that means ये तो 0 आ गया आपका पॉलिनोमियल. ठीक है, सेकंड वैल्यू पे और चेक कर लेते हैं हम अपना. p 2 upon root 3 is equals to क्या आएगा आपका बेटा? 3 into 2 upon root 3 का स्क्वायर. जहां x है, x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे. In place of x, we will put the 2 upon root 3, 3 into 4 by 3 minus 1, 3 से 3 cancel हुआ, तो that is equals to 4 minus 1 is equals to 3. तो ये तो 0 नहीं आया. Hence, x is equals to minus 1 by 3 is a 0 of a px. Hence, x is equals to minus 1 by root 3 is a 0 of px. बेटा px का मतलब ये पॉलिनोमियल दे रखा है आपको. ठीक है, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे ये स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा. या चलिए मैं एक न्यू स्लाइड ओपन कर लेती हूँ अपनी, उस पर मैं आपको ये समझा देती हूँ. लेट मी क्लियर माई स्लाइड. जस्ट मिनट, मैं क्लियर करती हूँ इसको, फिर ये वाला जो लास्ट नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का यहीं पे समझाती हूँ आपको मैं. क्लियर नहीं हो रहा है जस्ट. ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गई स्लाइड. ठीक है, यहीं पे मैं आपको समझाती हूँ ये. ठीक है, देखो लास्ट पार्ट का आपका पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, ये आपका बेटा सेवंथ पार्ट में लिख देती हूँ. सेवंथ नहीं, ये एट्थ पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ में पॉलिनोमियल इज गिवन पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1. हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 1/2. पॉलिनोमियल 1/2 इज इक्वल टू 2 into 1/2 प्लस 1. इस 2 से 2 कैंसिल हो गया. That is also not a zero of a polynomial, that is equals to 2. Hence, x is equals to 1/2 is not a zero of a polynomial. Is not a zero of a polynomial. Okay, let's move on next question. That is question number 4. In a question number 4, find the zeros of a polynomial in each of the following case. So here the polynomial is given px is equals to x plus 5. यही तो दे रखा है. आपको क्या निकालना है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए अपने पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दीजिए. px इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? -5. सो x इज इक्वल टू -5 is a zero of the polynomial. Is a zero of px. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक, फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया था. इन सेकंड पार्ट में आपका पॉलिनोमियल गिवन है px is equals to x minus 5. Same process we will follow in this part. Px is equals to 0, that by x minus 5 is equals to 0, x is equals to 5. So x is equals to 5 is a 0 of x is equals to 5 is a 0 of px. Same method we will follow in the next part, that is px is equals to 2x plus 5. So px is equals to 0, that is equals to 2x plus 5 is equals to 2x minus 5 is equals to 0. 2x is equals to 5, x is equals to 5/2. So x is equals to 5/2 is a 0 of px. Clear? So move on next slide. The next slide में हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है?
Px is equals to 3x minus 2. So same process we will follow in this part also. Px is equals to 0. That's why 3x minus 2 is equals to 0. 3x is equals to 2. X is equals to 2 by 3. So x is equals to is a 0 of Px. सेम यहाँ पर इस वाले पार्ट में Px is equals to 3x. Px is equals to 0. 3x is equals to 0. x is equals to 0 by 3. तो x is equals to क्या हो जाएगा आपका 0. So x is equals to 0. So x is equals to 0 is a 0 of Px. सेम पार्ट यहाँ भी बेटा हम यही करेंगे. Px is equals to ax. तो सेम Px is equals to 0 करेंगे तो ax is equals to 0 हो जाएगा. x is equals to क्या है आपका 0 अपॉन a. x is equals to a. यहाँ हमारे पास बेटा एक कंडीशन दे रहे हैं कि a is not equals to 0. अगर a हमारा 0 हो जाता तो दैट मीन इट्स नॉट डिफाइंड हो जाता. सो x is equals to x is equals to 0 is a 0 of Px. क्लियर. In the next slide हमारे पास last part of this exercise is polynomial x is equals to given है हमारे लिए cx plus d. तो same process px is equals to 0. तो cx plus d is equals to 0. cx is equals to minus d. x is equals to minus d upon c. और यहाँ आपको गिवन है d and c are real number. So that means 0 नहीं है. तो x is equals to minus d by c. Okay. So x is equals to यहाँ लिख देती हूं मैं. So x is equals to minus d upon c is a 0 of polynomial x.